हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करें टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 नवंबर को शिफ्ट 2 में, उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले कॉम्प्रिहेंशन आ रखा है तो क्वेश्चंस रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल ग्रूमिंग एंड सेल्फ एस्टीम। ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। सेल्फ एस्टीम इम्पैक्ट्स ग्रूमिंग हैबिट्स बट इट is unaffected by how other perceives an individual's appearance. Second option क्या है? Good grooming guarantees positive social interaction while poor grooming solely affect personal health. Third, grooming only impacts self-esteem in a superficial way with no long-term psychological effects. Fourth, personal grooming habits directly influence self-esteem as feeling well groomed can enhance confidence while neglecting grooming may lead to self-doubt and lower self-worth. Question number 2. According to the passage, what is a likely long-term impact of poor grooming habits during adolescence? A. Improved academic performance as a coping mechanism for social exclusion. Second option क्या है? A reduction in self-esteem due to potential negative social feedback such as bullying and exclusion. Third, development of a positive self-image despite social challenges. Fourth, increased resilience and independence in later social situations. Question number 3. What is the tone of the passage regarding personal grooming and its impact on self-esteem? Optimistic and motivational, formal and critical, sarcastic and dismissive, objective and informative. Question number 4. What is the most appropriate title of the given passage? The role of hygiene in personal well-being, how to improve self-esteem through social interaction, personal grooming, a key to confidence and self-esteem, the impact of grooming on social perception. Question number 5. Select the most appropriate antonym of the word erode as used in the given passage. Decline, build, destroy या falter. अब हम अपना एक बार फटाफट पैसेज पढ़ लेते हैं। Personal grooming plays a crucial role in shaping self-esteem. Personal grooming involves maintaining a neat and clean appearance, including hair care, skin care, and dressing appropriately. Grooming habits such as regular haircuts, skin care, and dressing appropriately contribute to how individual perceives themselves and how they perceived by others. When people feel well groomed, they tend to project confidence, which positive impacts their self-esteem. For example, a well-dressed individual may feel more comfortable in social situations, contributing to a better self-image. Controversially, controversially, negative grooming can lead to feeling of insecurity and social withdrawals. A lack of self-care often results in people self-unattractive or embarrassed, which can undermine their sense of self-worth. Over time, poor grooming can diminish one's self esteem as the individual may internalize negative social cues and judgments. For example, a teenager who neglects personal hygiene might experience bullying and social exclusion, which can have lasting effects on their confidence. Thus, the relationship between grooming and self esteem is reciprocal. Good grooming fosters self confidence, while poor grooming can erode it. This connection is particularly important during formative years such as adolescence, while when social appearance and self-image are closely linked. Understanding these connections not only prepares individuals for the challenges for the daily life but also equips them to build healthier, more productive futures. अब क्वेश्चंस आ जाते हैं क्या है? Best explain the reciprocal relationship between personal grooming and self-esteem. That is, grooming, personal grooming habits directly influence self-esteem, as feeling well groomed can enhance confidence, while neglecting grooming can lead to self-doubts and lower self-worth. ये देखो मैंने पैसेज में यहाँ पे अंडरलाइन भी किया है कि ये देखो ना, कहाँ गया? हाँ देखो, नेगेटिव ग्रूमिंग कैन लीड टू फील ऑफ इनसिक्योरिटी, ये सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, एंड इससे पहले पॉजिटिव भी होगा ना, ये रहा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2.
According to the passage, what is likely long-term impact of poor grooming habits during adolescence? That is a reduction in self-esteem due to potential negative social feedback such as bullying and exclusion. Option number 2 is the correct answer. Question number 3. Tone of the passage regarding personal grooming and its impact on self-esteem. तो ऑब्जेक्टिव एंड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. देखो, ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या मोटिवेशनल है नहीं, फॉर्मल एंड क्रिटिकल तो नहीं है, और सरकास्टिक डिसमिसिव मतलब किसी पे व्यंग्य भी नहीं करा है. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. टाइटल ऑफ द पैसेज, सबसे अच्छा टाइटल यही लग रहा है, पर्सनल ग्रूमिंग अ की टू कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. इरोड का पहले मीनिंग पता होना चाहिए. इरोड का क्या मतलब होता है? ग्रेजुअली वीकन और डिमिनिश. ग्रेजुअली वीकन और डिमिनिश. तो डिक्लाइन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का गिरना. बिल्ड मतलब स्ट्रेंथन और डेवलप. स्ट्रेंथन और डेवलप. डिस्ट्रॉय कि ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का. फॉल्टर भी क्या होता है? वीकन और हेजिटेट. वीकन और हेजिटेट. तो हमारा आंसर क्या हो गया? इरोड का एंटोनिम हो गया बिल्ड. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. दे वेटेड पेशेंटली डैश द बस स्टॉप इवन दो इट स्टार्ट टू रेन. देखो, वो वेट कर रहा है कहाँ पे? बस स्टॉप पे, एट द बस स्टॉप. जब भी कि हम वेट करते हैं, मतलब स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन पे जब हम कुछ करते हैं तो उसके लिए एट यूज़ होता है. जैसे इस वाले में एट द बस स्टॉप, वो वेट कर रहा है एट द बस स्टॉप या स्टेशन और कॉर्नर, तो उनके साथ क्या यूज़ होता है? एट. क्वेश्चन नंबर 7. Select the most appropriate option to fill in the blanks. The children dash happily when the magician pulled a rabbit out of the cat. The children, देखो यहाँ पे क्या आएगा वर्ड, उससे हमारे को देखो यहाँ पुल्ड यूज हुआ है ना. मैजिशियन पुल्ड अ रैबिट आउट ऑफ द कैट हैट. तो पुल्ड यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है. सिंपल पास्ट टेंस. तो वर्ड यहाँ पे कैसा वर्ड आएगा जो सिंपल पास्ट टेंस में हो? लाफिंग. ये तो मतलब प्रेजेंट प्लस आईएनजी फॉर्म है, लाफ्स. और यहाँ पे चिल्ड्रन यूज़ हुआ है तो एस तो वैसे भी नहीं यूज़ हो सकता, क्योंकि चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल. और वर्ड के साथ, वर्ब के साथ एस और डी एस सिंगुलर के साथ लगता है, तो ये वैसे ही नहीं आएगा. ये भी नहीं आएगा. लाफ ओनली वर्ब है, उसके साथ कुछ और भी तो लगाना पड़ेगा ताकि पता चले. लाफ्ट क्या आएगा? द चिल्ड्रन लाफ्ट हैप्पीली. और वैसे भी यहाँ पे पता चल रहा है ये भी सिंपल पास्ट है, पुल्ड, और लाफ्ट भी सिंपल पास्ट टेंस में. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर. अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ. किससे स्टार्ट हो सकता है? अरे सबसे ABCD, ये तो ईजी हो गया. अब हमारे को बस स्टार्टिंग जहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है वो सेंटेंस देखना है. क्या एक है? आई हैव सीन दैट वी हैव मोर फेथ इन अ प्रोफेशनल हु इज़ हाईली एजुकेटेड देन इन वन हु इज़ नॉट academically bright. B. So higher education is not only necessary but also vital in the modern context. B से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, एलिमिनेट हो गया. सी. अ डेवलपिंग नेशन नीड्स ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स दैट हायर एजुकेशन नर्चर्स. डी क्या है? इन ऑर्डर टू बी अ डेवलप्ड कंट्री एंड टू कीप पेस विद अदर प्रोग्रेसिव नेशंस आर स्टूडेंट्स नीड टू बी हाईली क्वालिफाइड. देखो कहाँ पे है? अगर आप मतलब एक डेवलप्ड कंट्री के लिए आपको
टू कीप पेस विद अदर प्रोग्रेसिव और अदर नेशन से पेस करने के लिए आपके स्टूडेंट्स को हाईली एजुकेटेड होना चाहिए। तो डी से स्टार्टिंग लग रही है। देन डी के बाद क्या आएगा? ए, आई हैव सीन दैट वी आई हैव seen that we have more faith in a professional who is highly educated than in one who is not academically bright। हमारे को ज़्यादा फेथ उन पे होता है जो कि प्रोफेशनल होते हैं, ना कि जो एकेडमिकली ब्राइट नहीं होते हैं, हम उन पे ज़्यादा फेथ नहीं कर पाते हैं। तो डी के बाद ए आ जाएगा, देन बी और सी। ए की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, select the most appropriate option to fill in the blanks. If no article is required, select the option no article required. The tourist admired dash architecture of dash Taj Mahal in the moonlight। देखो सबको पता है ताजमहल के आगे तो दाई आएगा, तो ये जो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड ये तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गए। अब देखो ये जो आर्किटेक्चर है ना, यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो आर्किटेक्चर यहाँ पे जो बात हो रही है वो ताजमहल की बात हो रही है, ताजमहल का आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर के आगे भी द आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एलिगेटर, अलायंस, एलिमनी या एलिगड्री। एलिगडली। एलिगेटर क्या होता है? एलिगेटर एक क्रिएचर, मतलब एलिगेटर मीन्स घड़ियाल। हम तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? अ लार्ज कार्निवोरस reptile with a broad snout। Alliance is a union or association formed for mutual benefit। A union or association formed for mutual benefit। Alimony, money that a court orders one spouse to pay regularly to the other after separation or divorce। Money that a court orders one spouse to pay regularly to the other after separation or divorce। एलिगली एक तो इसकी स्पेलिंग ही गलत है, ALLEGEDLY एलिगली। और इसका मीनिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू व्हाट इज क्लेम्ड और रिपोर्टेड। अकॉर्डिंग टू व्हाट इज क्लेम्ड और रिपोर्टेड। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। किक द बकेट। किक द बकेट इसका क्या मतलब है? टू फेल द एग्जाम, टू एंड अ रिलेशनशिप, टू कंप्लीट अ टास्क या टू डाई। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Question number 12, sentence of a paragraph are given below in jumbled order। Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph। देखो A B C और D, E से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। अब हम पढ़ लेते हैं क्या है A। It now offers full-time research programs, MPhil, DPhil and others in educational policy, planning and administration from a broad interdisciplinary perspective of social science। B क्या है? MHRD established the NUEPA as a premier organization dealing with capacity building and research in planning and management of education।
देखो बी से स्टार्टिंग लग रही है क्योंकि बता रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने इस्टेब्लिश किया है ये एक प्रोग्राम जो आगे आगे कुछ है। फिर उसके बाद ये है ना, इट ना ऑफर्स फुल टाइम रिसर्च प्रोग्राम्स एंड समथिंग समथिंग। बी से ही स्टार्ट लग रहा है। बी के बाद अगर हम देखें तो ये क्या है, इट ऑपरेट्स नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन साउथ एशिया फॉर द डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज। यस, जो ये है NUEPA, ये इंडिया में ही नहीं बट साउथ एशिया में भी ऑपरेट्स हो रहा है ताकि नॉलेज मिल सके। तो बी से ही लग रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो इट ऑल्सो हेल्प, सी से हो नहीं सकता, क्या ऑल्सो हेल्प कर रहा है, उसके आगे कुछ होना चाहिए। ए से भी नहीं लग रहा क्योंकि इट ऑफर्स। डी देख लेते हैं एक और बार। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ अ डीम टू बी यूनिवर्सिटी टू नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन अगस्त 2006। इसमें ये लिखा है कि 2006 में उसको एक एज अ डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया। बट पहले वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए ना MHRD के द्वारा, तभी तो मिलेगा। तो बी से स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सिट्यूट फॉर द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। Mihir is a person who is excessively fond of luxury and comfort, always surrounded by the finest things money can buy, and living a life of opulent ease. Punctilious, prude, jocular या साइब्रा 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 राइट। इनका एक बार मीनिंग देख लेते हैं और ताकि हमारे को पता चल जाए। पंक्टिलियस इज ओवरली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स और रूल्स। ओवरली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स और rules. Prude is someone who is easily shocked by matters related to sex or morality. Someone who is easily shocked by matters related to sex or morality. Jocular is fond of joking, humorous, or Sybarite is a person who is excessively fond of luxury or comfort. Fond of luxury and comfort. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू पुल समवन्स लेग। टू पुल समवन्स लेग का क्या मतलब होता है? टू जोक और टीज समवन इन अ फ्रेंडली वे। टू joke with or tease someone in a friendly way। तो हमारा आंसर क्या हो गया? टू डिसीव समवन प्लेफुली। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, select the most appropriate option to fill in the blanks. If there is no article required, select no article required. The committee reviewed dash report submitted by dash university research team. देखो कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी रिसर्च टीम के बारे में बात हो रही होगी ना। एक पर्टिकुलर रिपोर्ट सबमिट करी है और एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने। रिसर्च टीम तो मतलब पर्टिकुलर ही होती है, स्पेसिफिक ही होती है, इसलिए दोनों जगह क्या आ जाएगा? द। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, select the option that can be used as one word substitute for the underlined group of words in the given sentence.
Goneril poisoned her sister, thereby committing the murder of her sister in the play King Lear. देखो, sororicide, युक्सो यूरोक्स युक्सोरिसाइड, होमोसाइड या मेरिटिसाइड। मीनिंग देख लेते हैं क्या क्या होते हैं इनके। सोरोर, देखो आपको, अगर मैं आपको करेक्ट, देखो सोरोर का मतलब होता है सिस्टर और साइड का मतलब होता है किलिंग। तो क्या है, द मर्डर ऑफ सिस्टर या किलिंग ऑफ सिस्टर। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। साइड जहाँ पे भी है ना, साइड का मतलब होता है किलिंग। तो यूरोक्सीसाइड, यूसोरिसाइड इज killing of one's wife, killing of one's wife. Homicide, killing of a human being, killing of a human being. Matricide is killing of one's husband, killing of one's husband. Question number 17. Select the incorrectly spelled word. Monotonous, colloquium या chiarocurist या accoutrement. मोनोटोनस का क्या मतलब होता है, डल, रिपीटेटिव, डल, रिपीटेटिव। colloquium, an academic seminar or conference, an academic seminar or conference. chiarocurist, सी होता है ये, CHIAROSCURIST, यस, सी, यही वाला ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे केक की जगह क्या आएगा, सी। और मतलब क्या होता है, एन आर्ट टेक्निक using strong contrast of light and dark. Contrast of light and dark. और accoutrement, accoutrement is additional item or accessories. Additional item or accessories. Question number 18. Select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. The author's writing style was characterized by its pedestrian nature. Pedestrian का मतलब क्या है, डल या ऑर्डिनरी, मतलब जो उसका ऑर्डिनरी नेचर है वैसे ही उसने राइटिंग स्टाइल रखा है, ऑर्डिनरी, डल। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इम्प्रेसिव, रिमार्केबल। तो एक बार हम मीनिंग देख लेते हैं। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का क्या मतलब होता है, बिजारे, अगली, बिजारे और अगली, तो ये तो हो ही नहीं सकता। रग्ड, रग्ड मतलब रफ और स्ट्रॉन्ग, रफ स्ट्रॉन्ग। spectacular, spectacular is extraordinary, impressive, inquisitive is curious। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. Select the most appropriate option to fill in the blanks. You can choose tea dash coffee whichever you prefer. या तो आप टी, मतलब क्या चूज़ कर सकते हो, या तो टी या कॉफ़ी,
तो यू कैन चूज टी और कॉफ़ी विच एवर यू प्रेफर। ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. Could you please quiet the raucous laughter? रॉकस, रॉकस का क्या मतलब होता है? लाउड, हार्श, बोस्ट्रस। तो सोबर, ओपन माउथ, रीजनेबल या विलफुल। मतलब देख लेते हैं। सोबर का मतलब क्वाइट, काम और सीरियस। ओपन माउथ, बीइंग सरप्राइज्ड और शॉक्ड, बीइंग सरप्राइज्ड और शॉक्ड। Reasonable refers to logic. Willful is refers to stubbornness. Stubbornness refers to stubbornness. तो हमारा आंसर क्या हो गया? रॉकस का एंटोनिम इज सोबर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।